यैया जो जानह तो दुर्मत हन, कर बस काया गाँव। रण रूतो पाज नहीं, सूरो थारो नाम। रारा रस नरस कर जानिया, होए नरस सो रस पहचानिया। ए रस छाड़े ओह रस आवा, ओ रस पिया ए रस नहीं पावा। लल्ला ऐसे लिव मन लावे, अनत ना जाए परम सच पावे। आर जो तहाँ प्रेम लिव लावे, तो अलह लह लह चरण समावे। ववा बार बार बिशन संभार, बिशन संभार न आवे आहार। बाल बाल जे बिशन तना जस गावे, विशन मिले सब ही सच पावे। बाल बाल जे बिशन तना जस गावे, विशन मिले सब ही सच पावे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो परम सम्मान योग जुगो जुग अटल, चबर छतर ਅਤੇ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ, ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਦਸਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ, ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੀਂਦਰ ਆਲਸ ਆਦਿ ਦਾ ਤਰਕ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਉਦਮੀ ਬਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। 8:30 ਵਜੇ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਿਰੰਤਰ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਹਾਨ ਤਪਸਵੀ, ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਗੀਚੀ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ
ਜਥੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਵੀ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਉਪਰਾਲਾ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਵਾਂ ਵੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਭਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸੁੰਦਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਭਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਚਮਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਫਿਰਨ, ਬਈ ਵੀਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖ, ਭੈਣ ਆ ਭੋਜਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਚਮਚ ਤੇ ਚੱਖ ਕੇ ਵੇਖ, ਥਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਸਤੂ ਪਈਓ, 7 ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾकुर का पयो जिसका सबस आधारो, फिर जे को खावे जे को पुंचै तिसका होए उधारो। और फिर नसीहत की भी ये वस्त तजी न जाई, देखी किते इनू छड्ड ना दई, ਇਹ ਵਸਤ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਇਹਦਾ ਸੇਵਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਵੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਚਾਵੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਬਰਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾਸ ਦੀ ਤੇ ਇੱਛਾ ਸੀ ਬਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਚੂੰਕਿ ਹੁਕਮ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੜੀਵਾਰ ਜੋ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਾਸ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ 52 ਅੱਖਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਕੀ ਦੇ ਸਰਲੇਖ ਹੇਠ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 432 ਅੰਗ ਤੇ ਇਹ ਦਰਜ ਨੇ। ਆਓ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਆਓ ਸੁਰਤ ਬਿਰਤ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ। ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੇ ਰਸਨਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਤੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਫਿਰ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਨ ਨੇ ਯਈਆ ਜੋ ਜਾਨੋ ਤੋ ਦੁਰਮਤ ਹਨ। ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਮੱਤ ਹੈ, ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਦੁਰਮਤ, ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾ
जोश बहुत ज़्यादा है। मैं कई बार अर्ज करना हुन्ना भी तुसी सूचना अधिकार नियम तहत एक एप्लीकेशन दिओ बई 1947 च आज़ादी तो 2021 तक किन्ने कतल होए, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੀ 2%, 1.5%, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ 50%। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਬਈ ਮੈਜੋਰਟੀ ਵਾਲਾ ਜੱਜ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ, ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲਾ, ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਟੰਗ ਦਿਓ। ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਿਸਟੇਕ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨੇ ਆ ਮੈਂ ਇਤਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, मैं फलाने दी दुकान का कब्जा दवाया, फलानी जमीन के उत्ते मैं कब्जा किया। हजूर कहते ने तू अपने शरीर का कब्जा तो छुड़ा वकारां तो, तू कहना मैं कब्जे लेना वा, मैं कतल कर देना वा। एक तो अपनी मन मत का कतल कर दे, बाकी कतल भावें ना कर। दूसरा तू जमीनां दे दुकानां दे कब्जे देन दवाण वाला काम भावें ना कर, तू अपनी शरीर अपनी बॉडी ਇਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਲਈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਅਜੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਦੇਹੀ ਗਾਮ ਜੀਓ ਧਰ ਮਹਤੋ ਬਸੈ ਪੰਚ ਕਿਰਸਾਨਾ, ਨੈਨੂ ਨਕਟੂ ਸਰਵਣੂ ਰਸਪਤ ਇੰਦਰੀ ਕਹਿਆ ना माना। बाबा अब ना बसों ए गाँव, करी करी का लेखा मांगे कायस्त चेतू नाओ। उथे भी कबीर साहब यही कहते ने भी ये जिहड़ी देही है शरीर है ये मानो एक गांव है। गांव हिंदी च कहते पिंड नूं, विलेज नूं। और बड़े वड्डे वड्डे जिहड़े जिमींदार पिंडां दे मालक वो फिर आप खेती नहीं कर सकते, तो वो की करते, वो मजारे रख लेंदे भाई तू ये 20 एकड़ जमीन च तू खेती करेंगा, भाई इस 30 एकड़ च तू करेंगा, इस 25 एकड़ च तू करेंगा, ते हाड़ी सौनी तुसी इहदा मैनू हिस्सा दिओगे। ये शरीर जिहड़ा है ये मानो एक गांव है, एक विलेज है, एक पिंड है और इहदे ते 5 मजारे रखे सन काम करन लई, पर वो उल्टा इस शरीर रूपी पिंड दे उत्ते कब्जा करके बैठ गए। उन्होंने ओदा रेंट देना भी बंद कर दिता, ओदी बटाई देनी भी बंद कर दिती, ते उल्टा घूरना शुरू कर दिता भी तुहाडी ते जमीन तुहाडा ते पिंड है ही नहीं गा, तुसी खाम खा क्यों परेशान करदे हो। ये अवस्था बन गई भी जेड़े वकारां तो असी काम लेना सी, काम क्रोध दोए करो बसोले, गोडो धरती भाई ज्यों गोडो त्यों तुम सुख पावो, किरत ना मेटिया जाई। ये जिहड़ा काम ते क्रोध वकार ने इन्हां नूं कसोले बनाना सी। हुण ते स्प्रेयां आ गईयां, नहीं ते साध संगत फसलां विचों नदीन नूं खत्म करन लई कसोलियां नाल उन्हां खेतां नूं गोडिया जांदा सी। और हजूर ने आप खेती की, उन्होंने उदां दियां उदाहरणां भी सानू गुरबाणी विच दित्तियां गुरु नानक साहब ने। जिवें किसान कसोले नाल नरमे नूं गोड़दा है, नरमे नूं छड्डदा जांदा है, नदीन नूं पुੱਟਦਾ जांदा है, इस तरह काम क्रोध दे तू कसोले बनाने सन, इन्हां तो शुभ काम लेना सी। काम संतान दी उत्पत्ति वास्ते, क्रोध बीर रस विच रूपांतरित करके ते तू अणख वास्ते उन्होंने वरतना सी, पर तू इन्हां दे वहण विच वह गया। तो कबीर साहब कहते ने देही गांव, आम तौर पर असीं कहने देही गावां, गावां मीनस सौंग नाल रिलेटेड गल चली जाती है। ये ध्यान रखना चाहिए भी गग्गे कन्ने दे उत्ते बिंदी का उचारण साथों ना होवे। वैसे उत्ते हो जाता है जे ध्यान ना दईए ते, वैसे तो दूआं नूं बिंदी रहत उचारण करो तो अर्थ करन लग्या उहदे इदां अर्थ कर दिओ, पर जे वो वावे कन्ने ते लग जाए तो फिर कोई अनर्थ नहीं हुंदा। पर इस तरह थोड़ी जी एक मिसटेक हुंदी है, खिमा करना, वावे कन्ने ते लग जांदा है, गग्गे कन्ने ते लगना उत्थे नहीं लगता। गांव तो मुराद है विलेज। ये शरीर मानो एक गांव है,
जियो धर महतो, ये जिंद जिहड़ी है इहदी जिमींदार है, मालक है। बसै पंच करसाना, नैनू नकटू श्रवणु और रसपत इंद्री कहा ना माना। इंद्रियां आखे नहीं लगदियां। क्यों नहीं लगदियां जी? एक थां ते भगत रविदास जी ने सानू इस मिसटेक की वजह दसी है। आप जी फरमान करते ने, इंद्री सबल निबल विवेक बुद्ध। बुद्धि दे अधीन मन ने चलना सी, मन दे अधीन इंद्रियां ने चलना सी। बुद्धि कमजोर हो गई, मन ताकतवर हो गया। मन ने बुद्धि दे आखे लगना ही बंद कर दिता। बुद्धि मां है, स्त्रीलिंग है, मन पुलिंग वाचक है, पुत्र है। दुनियावी पक्ष तो भी पुत्र मां दे आखे लगदा है। मां पुत्र नूं मत देंदी है, ते जिथे पुत्र मां दी गल ना मन्ने, उल्टा मां नूं अपनी गल मनाए, फिर उत्थे अनर्थ हो जाता है। तो होया कि इंद्री सबल निबल विवेक बुद्ध। इंद्री जिहड़ियां सन साडियां इन्नियां ताकतवर, अखां नूं कहा भी तुसीं, मन ने कहा भी तुसीं ये जिहड़ा पराए रूप नूं मैल नाल तकदियां जे ना, ये बंद कर दिओ, गलत है। वाहिगुरू तां उहने कहा भी तू चुप करके बैठा रहो, मैनूं पता मैं की करना, यानी गल ना मन्नी। तो मैं एक बार फिर अर्ज कर दियां, क्योंकि मैं भी आदत तो मजबूर हाँ। चलदे दीवान विच फतेह बुलानी वो भी गुप्त। जे गुरबाणी का पाठ हो रहा है, कथा हो रही है, तो फिर सानू वैगुरू कहना तो भागां वालियां दे हिस्से आउंदा है, फिर वो भी सानू गुप्त ही कहना चाहिए। इहदे नाल डिस्टरबेंस हुंदी है। तो ये मैं रोज़ बेनतियां करना, होर किसी भी गुरुद्वारे मैनू कदी इस तरह की दिक्कत नहीं आई। ये पहला स्थान है जिथे ये प्रॉब्लम आ रही है, लगातार आ रही है, और कदी कदी खिज आउंदी है भी बिल्कुल जिद्दां असीं बिल्कुल ही, मैनू खिमा कर देना, मैं माफ़ी मांग के बेनती एक शब्द वरतन लगा, बिल्कुल ही लो सोसाइटी जिद्दां हुंदी ना। तो कम से कम सानू गुरुद्वारे आउण दी ते जाच सीखनी चाहिए है ना। गुरुद्वारे दे असीं अंदर आ गए हाँ, तो हुण असीं किस तरह दा आचरण करना है। ये पंचायत का क्या सिर मत्थे प्रणाला उत्थे ही, तो फिर कोई लाभ नहीं ना प्यारिओ। तो इस वास्ते मेरी ये निमर बेनती है भी वाहगुरू जिन्हों सुनाना है वो तुहाडे अंदरों ही सुनदा पिया, और जिन्होंने असीं सुनाने आ ना, उन्होंने तुहाडा किसी का कुछ नहीं सवारना। हाँ हुण कीर्तन होना है, जथे दे सिंह आए ने, और जथे दे सिंह विचकार वाहगुरू गुरमंत्र का जाप करते भी ने, कराउंदे ने, वो वखरी गल है। एक पासे हो रहा हुण, एक पासे की विचार हो रही है, एक पासे असी उत्थे इस तरह करिए, तो फिर वो कलैश हो जाता है। सो इस वास्ते जरूर बेनती प्रवान करया करो। एक बारी सारे प्यार नाल आखो सतनाम श्री। देही गांव जियो तर महतो, बसै पंच किरसाना, नैनू नकटू श्रवणु रसपत इंद्री कहा ना माना। बाबा अब ना बसों ए गाँव, घरी घरी का लेखा मांगे, कायत चेतू नाओ। ये जड़ा कायत अखर है साध संगत जिथों आया, उथे दा उच्चारण है कायस्थ। कायस्थ ब्राह्मणा विच एक लास्ट नेम है, गोत है। आम तौर ते लिखण पढ़न दा काम जिहड़ा उस बैल्ट विच सी, वो कायस्थ लोकां विच सी। उन्हां दा मैथेमैटिक्स बड़ा स्ट्रोंग सी। इस वास्ते चित्रगुप्त नूं भी कायस्थ ही लिख दिता, जिहड़े उरवार पार के दानियां ने। तो कबीर साहब कहिंदे ने भी इस शरीर विच जिन्ना चिर रहना है भाई उहदा हिसाब किताब होना है। इस वास्ते मैं हुण इस गांव विच नहीं, क्योंकि गांव मेरा है ते वर्त वकार रहे ने, तो हिसाब मेरे तो मंगिया जाना है। अखीर च फिर कहिंदे पंच किरसानवा भाग गए, लै बांधिओ जियो दरबारी। हुण वेखो ना बई फसल ते मजारे लै जाण, ते जदों माल महकमा आवे वो मालक नूं पकड़ के कहे भी इत्थे हाला रख, मामला रख। आमदन कोई होर लै जाए ते खर्चा मैनू करना पे, ते किन्ना चिर काम चलेगा। शरीर नूं वरत जाण वकार ते लेखा जोखा मेरी जिंद नूं देना पे,
तो फिर ये उल्टा हो जाएगा। यही बचन अज महाराज कह रहे ने, यया यये अखर तो उपदेश है, जो जानो तो दुरमत हन। पहली गल अपनी मनमत का नाश कर, और दूजी गल कर बस काया गाओ। गुरमत जदों एक जना गुरु कोलों प्राप्त कर लेना साध संगत, वेखण च आया कई बार वो फिर अगे फैलदी है, जिवें एक दीवे तो दूजा दीवा जग जाता है, दूजे तो तीजा जग जाता है। जदों हजूर गुरु नानक साहब ने मलसियां दे रहन वाले भाई भगीरथ नूं लाहौर भेजिया भी भाई मरदाने दी बच्ची दी शादी वास्ते साजो समान लियाना है, ते उत्थे भाई साहब नूं जिहड़ा हटवाणिया मिलिया उहदा नाम सी मनसुख। मनसुख नाल कुछ इस तरह दीयां विचारां होईयां भी वो प्रभावित होया। जदों ने कहा भी होर ते जो लिस्ट विच समान लिखिया तैयार है, पर जो हाथी दंद दा चूड़ा लिखिया ना वो तैयार नहीं गा। महाराज ने जदों बेटी का आनंद कारज सी ना ते लाहौर भेजिया मलसियां दे लंबरदार नूं, मेरे कीर्तनीए दी धी दा विआह है, और उदों सिरे दा शहर लाहौर सी, अमृतसर ते वसिया ही नहीं सी, ना तरन ताਰਨ सी। ये भी मैं अर्ज करदे हां। और अज दी तरीक च हाथी दंद का चूड़ा प्राप्त करना होवे ते वड्डे वड्डे धनाड़ व्यक्तियों का जीभ बाहर निकल जाती है। उन्हां जमानियां च महाराज ने हाथी दंद का चूड़ा मंगवाया। हुण साडी कौम का सारा जोर संगे मरमर दे उत्ते लगा है, रागी अड्डियां रगड़ रगड़ के मर जाण, कोई प्रबंधक श्रेणी नूं फिकर नहीं इस गल दा। ग्रंथी का घर पूरा होवे ना होवे, पाठियां का घर पूरा होवे ना होवे, रागी ढाडी जिन्ने सिरे दे रागी ने, सिरे दे कथाकार ने, तुसीं उन्हां दे परिवारां दा एनालिसिस करके वेख लो, किसी का बच्चा इस लाइन च नहीं आ रहा। कोई न्यूजीलैंड बैठा है, कोई आस्ट्रेलिया बैठा है, कोई कैनेडा बैठा है, किसी ने रेस्टोरेंट खोलिया, किसी ने ट्रांसपोर्ट बनाई है। उन्हें दसिया भी ये इदां पोतड़े रोलते हैं, इदां जलील करते हैं, पेड़ पल्ले कुछ नहीं पैन देंदे, तिल तिल करके मारते हैं, थोड़ा थोड़ा करके लकड़ की मुड्ढी के उत्ते रख के थोड़ा थोड़ा करके टुकते हैं। बेटा इस काम च नहीं आना, तुसीं एनालिसिस कर लो, कर पता करके वेख लो, तो कोई नहीं इस पासे। सिखो गुरु नानक तो, भगीरथ लाहौर जा, मेरे कीर्तनीए दी बेटी का आनंद कारज, सारा समान क्वालिटी का होना चाहिए। और गुरु रूप साध संगत भाई मनसुख बड़े प्रभावित होए बचना तो। उसकी वजह यह सी भी कह लगे मैं अज ही वापस जाना है, कह लगे बाकी समान मैं सारा पैक करा दिता है, हाथी दंद का जो चूड़ा है वो तैयार हो रहा है, उन्होंने वक्त लगेगा, भलके तैयार हो जाएगा। कह लगे मैं अज ही जाना, वजह मेरे गुरु का हुक्म है। वो हस पिया, आखन लगा हद हो गई है, ऐसा किहड़ा गुरु है भी जिदे एक रात तू होर नहीं रह सकता। वो कह लगे भी वो गुरु ऐसा ही, कह लगा मैं बड़े वेखे ने, पखंडी हुंदे ने। तां भाई भगीरथ मलसियां दे लंबरदार सन, छोटा जिहा कस्बा है मलसियां, इत्थे धर्मकोट दे नाल, उधरों शाहकोट दे ते धर्मकोट दे विचाले, इत्थों दे लंबरदार सन भाई भगीरथ जी, गुरु नानक दे सिख बने हो। तां कहन लगा भी नहीं मेरा गुरु इदां दा नहीं, तू इस तरह कर, एक बार मेरे नाल चल, तेरी तसल्ली हो जाएगी। अगले दिन चल पे, रस्ते विच मन विच ये विचार कीती भी जे मैनू ये गुरु ने, अजे मैं तो गुरु धारण ही नहीं किया, ये गुरु ने मेरा नाम लैके पुकारिया ना, फिर मैं जानागा भी वाकई गुरु है। अजे आ दरवाजे जिन्नी दूर सी ते हजूर हस पे गुरु नानक साहब, ते कहन लगे आ बई मनसुख, वो प्यारिया ना ही मन सुख रखाया ही कि कदी मन का सुख माणिया भी आ, हुण खातर हो गई, जो धारिया सी वो प्राप्त हो गया, चरना ते टट्ठा सिख बड़िया। और फिर भाई मनसुख व्यापारी सी, इस संगला दीप तक जांदा सी,
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਬ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਸ਼ਿਵਨਾਬ ਤੋਂ ਅਗਾਂ ਕਈ ਸਿੱਖ ਹੋਏ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਗ ਦੇ ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਦੀਵਾ ਜਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਿਆ, ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਨੇ ਮਨਸੁਖ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਇਆ, ਮਨਸੁਖ ਨੇ ਸੰਗਲਾਦੀਪ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਬ ਦਾ ਜਗਾਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਸ਼ਿਵਨਾਬ ਨੇ ਅਗਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਾਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਵੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਗ ਪਈ ਸੀ। कम्युनिटी तो उतों तक पहुंचा ही नहीं गया। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। जिथों जिथों तक हजूर पहले पातशाह पहुंचे सन उथे फिर परत के पहुंचा नहीं गया। जदों मन मत का नाश हो जाए साध संगत जी, गुरु की मत आ जाए, फिर वो मत अगां फैलती है। दो काम कर, एक ते अपनी मन मत का नाश कर। साध संगत मन मत नूं खत्म करना बहुत आसान तो नहीं पर नामुमकिन भी नहीं। महाराज ने बाणी च कई बचन इस संदर्भ च लिखे ने। एक थां ते भी कहंदे ने भी मन की मत त्यागो हर जन, यह बात कठैनी। एक थोड़ी कठिन है, ये थोड़ी जी मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। इत मार्ग चलै भाई अड़े, गुर कहे साकार कमाए जियो। त्यागे मन की मतड़ी, विसारे दूजा भाव जियो। इयों पावे हर दरसावड़ा, नह लगे तती वाओ जियो। यया जो जाने तो दुर्मत हन, कर बस काया गाँव। रण रूतो भाजे नहीं। एक बहरूनी तौर पर युद्ध हुंदा ना साध संगत, कबीर साहब महाराज कह रहे ने भाई एक अंदरूनी युद्ध भी हुंदा, वकारां नाल हुंदा है। जे हुण रण तत्ते विच तूं वकारां दे मुकाबले ते आ ही गया है ते फिर हुण जूझ, खंडा खिंच के मैदान च आ जा। हार जित जाने वाहिगुरू, हुण ज्यादा विचार ना कर, हुण आ जा मैदान विच और ओदी टेक लैके इन्हां नाल जूझ जा, खदेड़ दे इन्हां वकारां नाल। रण रूतो रण तत्ते विच भाजे नहीं, जिहड़ा दुश्मन नूं पिठ ना विखाए, सूरो थारो ना, ओनू लोकी सूरमा कहिंदे ने। वेखो ना बहरूनी तौर ते कोई श्री साहब लैके नेजा लैके बंदूक लैके लड़े, ओनू ही सूरमा कहा जाता। पर एक अंदरूनी जंग है। नानक सो सूरा वरियाम, जिन विचों दुष्ट अहंकरण मारिया। जिन्हें हंकार नू मारिया, काम नू मारिया, भाई वह भी सूरा है। सो इस वास्ते हजूर बख्शिश कर रहे ने भी तू तां सूरमा है जे हुण वकारां दे टाकरे ते डट जाए, इन्हां नू पिठ ना विखाए। अगला जो पदा है, क्योंकि बहुत दिन हो गए ने 52 अखरी नू लगातार विचार नू लंबी विचार हो गई है, इस वास्ते मैं ज्यादा विस्तार ना करा। अगले बचन हैं रा रा रारे अखर तो उपदेश, रस नरस कर जानिया। रस केड़ा है जिन्हों नरस करके जानिया? जिहड़े पदार्थवाद दे रस ने, जिहड़े साध संगत खिमा करना वकारां दे चस्कियां दे रस ने। अखां नूं वेखण दा रस है, कन्नां नूं निंदा सुनन दा रस है, नासकां नूं सूंघण दा रस है, जीभ नूं बहुत सारे पदार्थ सिफारिशां कर करके बना के खाण दा रस है और निंदा करन दा भी रस है। ये सारे रस ने। जदों असीं ओह पंजां दी गल करने आ, मृग मीन भरिंग पतंग कुंचर एक दोख बनास, उन्हां नूं एक एक रस है। किसी नूं सुनण दा है, किसी नूं वेखण दा है, किसी नूं सूंघण दा है, किसी नूं चखण दा है, किसी नूं स्पर्श दा है। हाथी नूं स्पर्श दा रस है। एक एक ऐब उन्हां नूं लै के बह जांदा है। ते महाराज कहंदे जिहदे विच ज्यादे ऐब ने, सारे ही ऐब ने, उहदा ते फिर रब ही रखा है। इस वास्ते रस नरस कर जाने। वो किवें होवेगा? दो तरीके हुंदे ने साध संगत। एक हुंदा अपने आप नूं मर्यादित कर देना।
ਰਹਿਤ ਰਹਿਤ ਰਹਿ ਜਾਏ ਵਕਾਰਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਰਹਿਤ ਰਹਿਤ ਰਹਿ ਜਾਏ ਵਕਾਰਾ, ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵਕਾਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਕਾਰ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ। ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਇਹ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਗਰੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੰਧਨ ਜਿਹਾ ਭਾਸਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ है, कीर्तन करना है, दसवंध कढ़ना है, तो बहुत सारी मर्यादा है। और ऐ नहीं करना तो बंदश जी पासदी है ना प्यारिओ। पर भाई गुरदास कहते कदी कदी कुछ बंधन ना आजादी नालों भी चंगे हुंदे ने। तो फिर सिख कहन लगे भाई साहब जी बंधन आजादी नालों किवें चंगे हो सकते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। कित्थे बंधन कित्थे आजादी, आजादी का मुकाबला स्वतंत्रता का मुकाबला गुलामी किवें कर सकती है, बंधन किवें कर सकते हैं। इत्थे बंधन मीनस डिसिप्लिन, अनुशासन, मर्यादा। तो भाई साहब कह लगे कर सकते हैं। वो कवित मैनूं बड़ा प्रीतकार लगता है, वो मैं तुहाडी नज़र फिर करा। वो कहते ने खुले से बंधन बिखे भलो है सिचानो, जाते जीव घात करे ना बिकार होए आवे। सिचाना एक पंछी है बाजनुमा, चरग, कोई, सिचाना, बाज इत्याद, ये सारे मांसाहारी जीव ने और ये अपना शिकार आप करके उन्होंने खाते ने। हुण भाई साहब कहते ने भी एक सिचाना आजाद है, स्वतंत्र है, तो की करेगा, वो आकाश विच उड़ के पंछियों को पकड़ेगा और उन्होंने तोड़ तोड़ के फिर खाएगा। जे सिचाने नूं पकड़ के पिंजरे च बंद कर दईए तो फिर उहदा इस पाप तो ते बचाव हो गया ना। कह लगे जी हो गया। कह लगे फिर दसो आजादी चंगी है कि बंधन चंगा है। खुले से बंधन बिखे भलो है सिचानो, जाते जीव घात करे ना। उहदे कोलों जीव हत्या उहदी रुक जाती है पिंजरे विच आउण तो बाद, ना बिकार होए आवी। खुले से बंधन बिखे भलो है सूआ प्रसिद्ध। सूआ पढ़ावत गनका तरी, श्री गुरु ग्रंथ साहब। सूआ मायने तोता। हुण वो साखी बड़ी प्रसिद्ध है, इसलिए मैं उहदे विस्तार च ना जावां। भी अचानक गणका वाड़े साधु आ खलोता, बाबा जी को मैनू ही उपदेश दिओ, मेरा पापण का भी उधार हो जाए। हुण तोता दे दिता भी इनू राम राम जपाया कर। हुण तोते का उधार होया कि नहीं होया कोई मैंशन नहीं, पर कहंदे ने गणका का उधार हो गया। तो भाई गुरदास जी कहंदे ने खुले से बंधन बिखे भलो है सूआ प्रसिद्ध। क्यों भला है? क्योंकि ये सारा घटनाक्रम जिहड़ा उहदे नाल वापरिया। और तीजी एग्जाम्पल देंदे ने खुले से बंधन बिखे चकई भली। चकवी ते चकवा दो नर ते मादा पंछी। इहदा गुरबाणी विच भी एक थां जिक्र है। कबीर चकई जो निस बीछुरै, चचा कक्का ईड़ी नूं बिहारी है। चकई जो निस बीछुरै, ये रात नूं नर ते मादा एक दूजे तो विछड़ जाते, लख यतन करन नहीं मिल सकते, दिने मिल जाते हैं। शायद कोई इन्हां दियां अखां इन्हां दी निगाह विधाते ने इस तरह की बनाई है भी शायद रात नूं इन्हां नूं बिल्कुल ही ना दिसदा होवे। जिस तरह उल्लू नूं साध संगत दिने नहीं दिसदा और मन्निया जांदा रात नूं दिसदा। कुछ इस तरह की हालात इन्हां दे उल्टे होण, रात नूं नहीं दिसदा। तो इहदे पिछे एक कहानी है भी जदों सीता दा हरण रावण ने कर लिया तो उदों बेबल हो के रामचंद्र जी
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੀਰੀਅਲ ਵੇਖਿਆ ਰਮਾਇਣ, ਉਹ ਕਈਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੱਫੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਨਾਲੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਰੋਵੇ ਰਾਮ ਨਕਾਲਾ ਪਿਆ। ਤੋ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਰੱਬ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਉਹ ਲੱਖ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਅਜੂਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਹਦੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕੁਸ਼ਲਿਆ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦਸ਼ਰਥ ਹੈ। ਖੈਰ, ਉਹਨ ਚੱਕਵੀ ਚੱਕਵੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕੁਝ ਠੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ। ਮਿੱਥ ਹੈ ਉਹ ਚੱਕਵੀ ਚੱਕਵੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਮਿੱਥ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਥੋਲੋਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਿਸਟਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਿਜ ਸਟੋਰੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਮਿਸਟਰੀ, ਮੈਥੋਲੋਜੀ, ਮਿਥਿਹਾਸ, ਮਿਥੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਇਤੀ ਪਲਸ ਹਾਸ, ਬੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਘਟਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਆਚਰਣ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਰਾਫ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿਯੋਗ 'ਚ ਬੇਬਲ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਓ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਮਨੌਤ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਚੱਕਵੀ ਚੱਕਵੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਪਾ ਦਈਏ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦਾ ਸਰਾਫ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। खुले से बंधन बिखै चकई भली, जो राम रेख मेट, जो राम ने रेख मारी सी, जो राम ने सराफ दिता सी, ओनू मटा के निस्प्रिय संग पावी, अपने प्यारे दे नाल ओ मिल जाती है। इस वास्ते भाई ये है ते बंधन। मर्यादा विच अखां नूं लियाउणा, मर्यादा विच कन्नां नूं लियाउणा, मर्यादा विच जीभ नूं लियाउणा, मर्यादा विच मन नूं लियाउणा, बंधन विच लियाउणा। पर यह बंधन, ये अनुशासन उस स्वतंत्रता नालों किते चंगे ने जिहड़े इन्हां इंद्रियां नूं विकारां वल प्रेरित करदे ने। रारा रस निरस कर जानिया, होए निरस सो रस पहचानिया। जिन्हां ने ये संसारी रस विकारां दे फुरनियां नूं निरस करके जानिया, होए निरस सो रस पहचानिया। इन्हां रसां नूं निरस कर लिया ते फिर वो रस आउंदा है। बिखै बन फीका त्याग री सखिए, नाम महारस पियो। बिन रस चाखे बुढ़ गई सगरी, सुखी ना होवत जियो। होए नरस सो रस पहचानिया, ए रस छाड़े ओ रस आवा। इस वकारां दे रस, ये जिहड़े चस्के ने, जिहड़े फुरने ने, जदों इन्हां नूं छड्डीए ते फिर वो रस आउंदा है। और जदों ये रस आ जाए ना, फिर मनुख आम शरीर वांगू भोजन भी छकदा है, अपनियां बाकी संसारिक क्रियावां भी करदा है, पर शेख फरीद साहब वांगू फिर मूँह चों ये जरूर निकल जाता है भी फरीदा शक्कर, खंड नवात गुड़, माखियों मांझा दुध, सभे वस्तु मिठियां, रब ना पुजन तुद। और फिर बख्शिश कीती, लल्ला ऐसे लिव मन लावे, अनंत ना जाए परम सच पावे। लल्ले अखर तो उपदेश है। लिव शब्द जिहड़ा ना साध संगत गुरबाणी विच सुरत दे पर्यायवाची वजों आया है। ध्यान, इकाग्रता, सुरत, लिव, होर सौखे ढंग नाल नेड़े जाण लई
ਦੇ ਨਿਮਾਣੀ ਲਿਵੈ ਬਾਝੋਂ। जिस शरीर विच शब्द विच लिव नहीं लगी, वैगुरू विच लिव नहीं लगी, मूल मंत्र विच लिव नहीं लगी, गुरमंत्र विच लिव नहीं लगी, परमात्मा च लिव नहीं लगी, वो शरीर निमाणा हो जाता है। क्यों? उहदे विच परमात्मा की याद नहीं। तुसीं वेख्या ना साध संगत, कई पुराने बंगले सरकारी खंडर पए उहदे विच रुख उग जाते हैं, खंडर बन जाते हैं, और अचनचेत उत्थे एक टीम जाके सफाई करन लग पैंदी है। थोड़े दिनों च उसकी सफाई हो जाती है, वाइट वाश हो जाता है, रिपेयर हो जाती है, पहरेदार खड़े हो जाते हैं, चहल पहल हो जाती। लोग पुछते ने की होया, वो कहते जी पहला खाली पिया सी, हुण इत्थे फलां नेता आके रहना शुरू हो गया। और किसी VIP दे रहन नाल उस खंडर बंगले की भी सुनी गई। ये शरीर भी एक घर है ना, जे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ प्रभु की याद वसना शुरू करता है, ਇਹਦੀ भी कीमत ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ है, ਇਹਦਾ भी कदर ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ है, ਇਹਦੀ वैल्यू ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ है, ਇਹਦਾ सत्कार ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ है। तो लिव दी जो गुरबाणी विच बाणीकारां ने वैल्यू दसी है, ਉਹਦਾ असल विच सत्कार है। जिवें विद्वान दसदे ने भी नलके हुंदे सन ना साध संग, नलके तो हत्थी हुंदी सी एक उहनूं पानी कड्ढण वास्ते, तां ओह कहिंदे भी बंदे नूं प्यास लगी है, तुरिया जांदा है, पानी ते सारी धरती दे थल्ले मौजूद है, पर जिथे हैंड पंप आउंदा है ना, उत्थे दोवें जणे रुक जांदे ने। एक हाथी वाल आ जांदा है, एक टूटी वाल चला जांदा है, एक थोड़ा जिहा झुक के गेड़न लग पैंदा है, एक बुक करके झुक के पानी पीण लग पैंदा। हुण पानी ते सारी धरती दे थल्ले है, पर वो किते झुके नहीं। झुके किथे ने? जिथों पानी प्रगट हो रहा है। पानी सारी धरती थल्ले, परमात्मा दा वास साडे सारियां विच ही है, पर कईयां विचों फिर ओहदा वास प्रगट हुंदा है, ओहदे दीदार हुंदे ने, ओहदी खुशबू आउंदी है। जिवें नलके कोल जाके दो जने एक उधर ते एक उधर झुक गए ना, इदां फिर उन्हां जपण वालियां रूहां दे अगे हथ जुड़ जांदे ने, थोड़ा जिहा सीस भी झुक जांदा है। जिस तरह नलके कोल जाके असीं झुक जाने आ, वो क्यों झुक गए? क्योंकि उत्थे शब्द विच सुरत है। साध मिलै सिद्ध पाइए के एह जोग के भोग, फिर दूं मिल कारज उपजै राम नाम संजोग। दो कट्ठे हो जान गुरु दा शब्द ते चेले दी सुरत, फिर हजूर बख्शिश करते ने, कारज रास आउंदा है। साध मिले सिद्ध पाइए, पूरा गुरु मिले तो सिद्धि कामयाबी प्राप्त हुंदी है। इस वास्ते भगत कबीर साहब महाराज उपदेश कर रहे हैं, लल्ले अखर तो लल्ला ऐसे लिव मन लावे। लिव इस तरह लाए, किवें लाए जी? अनंत ना जाए परम सच पावे। अनंत मैंने होर पासे ना जाए। हुण ये कलियां गल्लां नाल नहीं हुंदा। सुरत जिहड़ी है ना साध संगत, मैं अक्सर अर्ज करना हुन्ना, वो साडी खिलरी हुई है। भागां वालियां रूहां गुरु की हजूरी च बैठे हो, भाई नमस्कार है तुहाडे चरनां च, पर कदी आत्म मंथन करियो। कई बार गुरुद्वारे बैठे भी असी थोड़ा जिहा मन दुकान च छड्ड आउंदे आ। मन सुरत लिव थोड़ी जी बैठिया बैठिया उधर जाती है, मकान च भी चली जाती है, दुकान च भी चली जाती है, बेटी बेटे विच भी चली जाती है, होर भी कई पासियां च दौड़ती है। और बिल्कुल थोड़ा जिहा 5% 2% 3% मन जिहड़ा है वो लैके इत्थे बैठे हुंदे आ। रसायन क्रिया नहीं वापरती, वजह समग्र एकाग्रता नहीं। ऐसे लिव मन लावे। कैसे लिव मन लावे? अनंत ना जाए, होर किते मन जाए ही ना, मन टिक जाए। फिर जिहड़ी मैं बेनती करना हुन्ना भी किरना पृथ्वी ते आ रही ने, ना किसी कागज नूं अग ला रही है लग रही है, ना किसी कख नूं अग लग रही है, ईवन हाईली इंफ्लैमेबल पदार्थां नूं भी अग नहीं लग रही।
पर तुसी लेंस लैके 5 7 10 किरणां इकट्ठियां करदे हो, अगे कागज़ रखदे हो, तुहाडे देखदियां देखदियां अग लग जाएगी। वजह उस लेंस ने 10 किरणां एक केंद्र बिंदु ते इकट्ठियां कर दित्तियां, अग लग गई, किरणां काम कर गईयां। यही हाल साडे मन दा है। जदों समग्र एकाग्रता एक केंद्र बिंदु ते इकट्ठी हो जाएगी, फिर कलगियां वाले पातशाह कहंदे ने एक चित जे एक छिन ते आयो, काल फांस के बीच ना आयो। और जदों तक एक चित नहीं, समग्र एकाग्रता नहीं, उदों तक रसायनिक क्रिया नहीं वापरनी। लल्ला ऐसे लिव मन लावो, कबीर साहब कैसे लिव मन लावो, अनंत ना जाए परम सच पावो। मन होर पासे जाए ही ना, 1% भी होर पासे ना जाए। आज मिलावा शेख फरीद कह लगे जी किवें, कह लगे टाके मकूंजड़ियां मनो मचिंदड़ियां। कूंज शब्द ठेठ पंजाबी दा, और कूंज मशहूर है लंबी प्रवाज लैण वास्ते। कूंज लंबी प्रवाज लेंदी ना, इंडिया तो साइबेरिया, साइबेरिया तो इंडिया, कई कई हजार मील की प्रवाज। शेख साहब कहंदे ने आज मिलावा, ऐसे जन्म विच बात बन सकती है, ऐसे शरीर विच बात बन सकती है जी। जुगत की है, मैथड की है। कह लगे टाकिम, टाकिम मैंने रोक, किन्हां नूं रोकां, कूंजड़ियां। किहड़ियां कूंजां, फुरने रूपी कूंजां। फुरनियां नूं रोकना इस फील्ड विच ना, अध्यात्मकवाद दे फील्ड च बड़ी वड्डी जमात है। असीं ते गल्लां ही करी जाने। हुण माहौल बनिया, मैं बेनती करां, स्कूल विच बच्चे नूं भेजना है ना, मावां 15-15 20 दिन पहलां उहनूं ट्रेन करना शुरू कर दिंदियां ने, पर गुरुद्वारे लियाउणा ते नहीं। मैं वेखना कलाबाजियां लांदे, और जेड़ी मां दा बच्चा कलाबाजियां लांदा ना, ਉਹਦਾ चेहरा ध्यान नाल पढ़िए तो खुश हो रही हुंदी भी वेखो मेरा पुत्र किवें कलाबाजी। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਲਵਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਕ ਚ ਲੈ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਕਲਾਬਾजियां ना लवा, ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਬਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਧਰੂ ਬਣਾ। ਜੇ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਪ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕਲਾਬਾजियां ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦਾ। ਰੋਜ਼ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਵੀ ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ। ਤੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਧਰੂ ਬਣਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਬਣਾ। ਜੇ ਪਲੇਅਰ ਬਣਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਮ ਭੇਜ, ਕਿਸੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਭੇਜ, ਉੱਥੇ ਦੌੜ ਲਾਏ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਧੀ ਲਾਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬੱਚਾ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕਨੇ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੀਏ, 5 7 10 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ ਰੋਜ਼ ਖਰਚ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਕੌਣ ਖਰਚ ਕਰੇ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੌਣ, ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂਗੀ। ਤੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਥੋੜਾ 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 ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਰਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ 25-30 ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਆਵੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੌਰਨ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਗੇੜਾ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦੇਖ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੱਤਾਂ ਲੁੱਤਾਂ ਖੋਲ, ਸਿੱਖਣ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਟਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜੇ ਪੱਟੀ ਲਪੇਟ ਲੈ ਦਈਏ ਨਾ, ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ
ਤੇ ਉਹ ਨਸੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਪਿਰਿਟ ਲਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਗੜ ਕੇ ਪੂੰਝ ਕੇ ਧੋਈਏ ਨਾ, ਦਰਦ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਵਾਂਗੂ ਚੁੱਭਣਗੇ ਪਰ ਹੈਗੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੋਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏ ਉਦਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਬਣੇਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਲਾਵੇ ਵੀ ਸੁਰਤ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਲੱਲਾ ਐਸੇ ਲਿਵ ਮਨ ਲਾਵੇ, ਅਨੰਤ ਨਾ ਜਾਏ ਪਰਮ ਸੱਚ ਪਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਏ ਹੀ ਨਾ। ਪਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਜੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵ ਲਾਵੇ। ਕੈਸੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤੁਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਹੈ, ਚਲੋ 10 ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਵ ਮਨ ਲਾਵੇ। ਕਿਵੇਂ ਲਾਵੇ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾਣਦਾ। ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਟਿਕ ਜਾਏ, ਮਨ ਦੌੜਨੋਂ ਹਟ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਅਰ ਜੋ ਤਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵ ਲਾਵੇ। ਉਸ ਲਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣਕ ਕਿਰਿਆ ਵਾਪਰੇਗੀ ਤਾਂ ਅਲਹ ਲਹੈ। ਲਾਹ ਦੇ ਗੇਤਰ ਐੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਲਹਿ ਚਰਨ ਸਮਾਵੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਮਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ 52 ਅੱਖਰੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਦਾ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦੇ 5-7 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਵਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਵਿਸ਼ਨ ਸਮਾਰ। ਵਿਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਤ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਈ ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰ ਮੋਹੇ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਟਰੋਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਕਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਦੇਵ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਹਾਦੇਵ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਦੇਵ ਕੋ ਕਹਿਤ ਸਦਾ शिव और निरंकार का। भाई ये नहीं शिव जी मेरा शिव जी सुप्रीम पावर है। इसे तरह बाणीकारां दा जिहड़ा विशन है वो ये विष्णु नहीं, वो परमात्मा नूं विशन कह रहे हैं। वव्वा ववे अखर तो उपदेश बार बार विशन संभार। वेखो कैसा इतफाक है। एक पासे जथे दे सिंह अज कीर्तन करन आए ने, एक पासे वो शब्द संबंधित आ गया। कुछ लोग किंतु परंतु करते ने बई ये जड़ा वार वार वाहिगुरु 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 करना है, ये मकैनिकल रैपूटेशन, इसका कोई लाभ नहीं। बार बार क्यों कहिंदे हो? हुण अज सच्चे पातशाह कहंदे ने वार वार ही क्या करो। आखो सतनाम श्री वार वार क्या करो। साह भी तो वार वार लेंदे हो, चाह भी तो वार वार पींदे हो, रोटी भी तो वार वार खांदे हो, रोज रात नूं सौंदे हो, ओ क्यों रैपूटेशन करदे हो? मैं खुशामद नहीं कर रहा, मैं गुरमत नूं प्रचंड कर रहा। ये वार वार कहना है वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, वार वार कहना है। रसना पवित्र हुंदी है। मन दे उत्तों आहिस्ता आहिस्ता वकारां दी मैल धुपदी है। अंतशकरण कुंदन वांगू साफ हुंदा है। वो सिमरन नाल ही हुंदा है, वो जप नाल ही हुंदा है, होर कोई तरीका नहीं गा। इस वास्ते जपना है, वार वार वाहिगुरु कहना है। ववा वार बार बिशन समार। जी की होवेगा फिर? हजूर कहने लगे बिशन समार ना आवे हार। जे तू परमात्मा दी संभाल करेगा, जीवन दी बाजी हार के नहीं जाएगा, जीवन दी बाजी जित के जाएगा।
सिमरन वाले जित जाते ने, गुरमुख लाहा ले गए, मनमुख चले मूल गवाए जी। वणज करो वणजारियो वखर लै हो संभाल, तैसी वस्त वसाई है जैसी निभ है नाल। फिर अग्गे शाह सुजान है लैसी वस्त संभाल, भाई रे राम कहो चित लाए, हर जस वखर लै चलो। शौह देखे पति आए, खुश होके देखेगा। ववा बार बार बिशन संभार, बिशन संभार ना आवे हार, बल बल जे बिशन तना जस गावे। बिशन परमात्मा, तन पुत्र। परमात्मा दे पुत्र कौन ने? भगत गुरमुख प्यारे जेड़े जपदे ने, उन्हां नूं कबीर साहब परमात्मा दे पुत्र कहिंदे ने। जेड़े परमात्मा दे पुत्र भगत गुरमुख जपदे ने, मैं उन्हां तो सदके जावां। हों कुर्बाने जाओ मेहरबाना, हों कुर्बाने जाओ, हों कुर्बाने जाओ तिन्हां के, किन्हां के लैण जो तेरा नाम। फिर दुहरा के कहंदे ने, लैण जो तेरा नाम तिन्हां के हों सद कुर्बाने जाओ। बल बल जे बिशन तना जस गावे, और बिशन मिले सब ही सच पावे। जदों मिल जाए तो सब ही सच पावे दे अर्थ ने सच मैंने परमात्मा। फिर उन्होंने सब जगह के उत्ते परमात्मा जिहड़ा व्यापक वो नजर आ जाएगा। तो साध संगत, जिस तरह आप जी नूं पता ही है भी अज विशेष गुरमत समागम ने, शाम 4 बजे तक, ये 8:30 बजे तक गुरमत विचारां दा समा सी, सो समा समाप्त है। लिहाजा दास गुरमत विचारां नूं इत्थे संकोचन दी आप जी तो आग्या चाहुंदा है। होईयां भुल्लां गलतियां वास्ते खिमा बख्शिश करनी। सो आओ गुरमुख प्यारियां तो फिर दोबारा कीर्तन जो है वो सरवण करके लाहे प्राप्त करिए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की